ହଉ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତମର ସେକେଣ୍ଡ ଚାପ୍ଟର ଅଛି ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକ ଆଉ ଲବଣ ନାଇଁ ଏସିଡ ବେସ୍ ଆଉ ସଲ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ଜାଣିଛ ତ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ଲବଣ କଣ ଜାଣିଛ, ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସ ତମକୁ ଦେଇ ଦଉଛି କଣ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଥିଓରି ପଢିଥିଲ, ବିଭିନ୍ନ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ମତ ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଆମର ଜାଣିଛ ଆରେନିୟସଙ୍କ ଥିଓରି ଦେଖି ଜାଣିଛ ହେଲା, ଆଉ ବ୍ରଡଷ୍ଟେଡ୍ ଲରିଙ୍କ ଥିଓରି ବି ତମେ ଜାଣିଛ, ଆଉ କାହାର ଥିଓରି ଜାଣିଛ? ଲୁଇସଙ୍କ ଥିଓରି ବି ଜାଣିଛ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ମୁଁ ତାକୁ ଇଏ କରିଦଉଛି ତାପରେ ଟିକେ ତାହେଲେ ତିନି ପ୍ରକାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଆରେନିୟସଙ୍କ ଥିଓରି ଦେଖିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲେ ବ୍ରନଷ୍ଟେଡ୍ ଲରିଙ୍କ ଥିଓରି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲେ ଲୁଇସ୍ ଥିଓରି। ଆରେନିୟସ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଣିରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ ସେ H+ ଦବ ସିଏ ହଉଛି ଏସିଡ, ଯିଏ OH- ଦବ ସିଏ ହଉଛି ବେସ୍। ନେକ୍ସଟ କିଛି ମଡିଫିକେସନ କରିକି ଆସିଲେ ବ୍ରନଷ୍ଟେଡ୍ ଲୁରି। ବ୍ରନଷ୍ଟେଡ୍ ଲୁରି କହିଲେ ବାପା ଯିଏ H+ ଦବ ସିଏ ହଉଛି ଏସିଡ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ, ଯିଏ H+ ନବ ସିଏ ହଉଛି ବେସ୍, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର OH ନଥିବ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ ଲୁଇସ୍। ଲୁଇସ୍ ମଡର୍ନ କନସେପ୍ଟ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନସେପ୍ଟ ଯାଙ୍କ ନା ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ପାୟୋନିୟର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେ କହିଲା ବାପା ତମେ ଯେମିତି କହିଲ ଯେ ସବୁ ଅବଜେକ୍ଟର OH ନାହିଁ, ସେମିତି ତ ଗୋଟେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ସବୁ ଅବଜେକ୍ଟର କଣ H ଅଛି କି? ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ, ଏନି କେମିକାଲ ସବଷ୍ଟାନ୍ସର ସମସ୍ତଙ୍କର ତ H ନଥାଏ, ସେ H+ ଦେବେ ବୋଲି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଥାଏ, ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ତାକୁ କଣ ଆମେ ଏସିଡ ବେସରେ ନେଇପାରିବାନି? ହଁ ନେଇପାରିବା। ହେଲା, ସେଟା କାହା ଉପରେ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତାହେଲେ ଜଣେ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ଅବଜେକ୍ଟ ଆଇଦର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେଇପାରେ ନହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନେଇପାରେ। ଦେଖ ଟିକେ ଟିକେ କମ୍ପାରିଜନ କରିଦିଅ, H+ ଉପରେ କିଏ ଚାର୍ଜ ଅଛି? ପ୍ଲସ ଚାର୍ଜ ଅଛି। ଇ ଉପରେ କିଏ ଅଛି? ମାଇନସ ଚାର୍ଜ ଅଛି। ଜଣେ ଯଦି H+ ଦଉଛି ତାହେଲେ ସେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କଣ ନଉଛି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନଉଛି ନା। ତାହେଲେ ବୁଝ, ଯିଏ H+ ଦଉଛି ସେ ଯଦି ଏସିଡ ହଉଛି ମାନେ ସେ କଣ? ଯିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନଉଥିବ ସିଏ ହଉଥିବ ଏସିଡ, ଯିଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡୋନର ଯିଏ, ସିଏ ହେଇଯିବ କଣ? ବେସ୍। ବେଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଆମୋନିଆ, ନାଇଁ କି, କାରଣ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଡୋନେଟ୍ କରିପାରିବ। କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ ଆରେନିୟସ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା, ବ୍ରନଷ୍ଟେଡ୍ ଲରି କନସେପ୍ଟ ଥିଲା, ଲୁଇସ୍ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା। ହେଲେ ଏତିକି ବେସରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅମ୍ଳ କ୍ଷାର ଲବଣ ଜାଣିଥିଲେ, କିଛିଟା ପିଏଚ୍ ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲେ। ପିଏଚ୍ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ ଅଛି ଯାହାର ଅମ୍ଳ କ୍ଷାରକୁ ଆମେ ମାପୁଛେ, ହେଲା। ତାର ଅଛି ସ୍କେଲଟାରେ କେତେରୁ କେତେ, ଆମେ ସ୍କେଲ 0 ରୁ 15 ଅଛି, ୟାର ସ୍କେଲ କେତେ? 0 ରୁ 14 ଅଛି। ମିଡିଲ ପାର୍ଟ ଏର 7 ପିଏଚ୍ ମାନେ ଏଟା କଣ ବୁଝିବା? ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ, ନା ସେ ଏସିଡ ନା ସେ ବେସ୍। ଆଉ ୟାଡକୁ ଆସିବ ମାନେ 7 ରୁ 14 ଆସିଲା ମାନେ ସିଏ ହଉଛି ବେସିକ ହେଇଯିବ, ଆଉ 0 ଆଡକୁ ଆସିବ ମାନେ ସେ ହଉଛି ଏସିଡିକ। 7 ରୁ ଯେତେ 14 ଆଡକୁ ଆସିବ ଅଧିକ ବେସିକ ହବ, ଯେତେ 0 ଆଡକୁ ଆସିବ ଅଧିକ ଏସିଡିକ। ଏତିକି କନସେପ୍ଟ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖିବା ତା ପ୍ରୟୋଗ କଣ, ଆପ୍ଲିକେସନ କଣ, ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ଆପ୍ଲିକେସନ କଣ ତାକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି, ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ କଣ। ତାହେଲେ କଣ କରିବା, ଯିବା ଦେଖିବା ଆପ୍ଲିକେସନ କଣ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଲେଖି ଦଉଛି। ଦେଖ ଏଠି, ଏଠି ଦେଖ ପ୍ରଥମ ଆପ୍ଲିକେସନ ର ଦେଖିବା ଯଦି ତମ ଘରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏଇ ୱାର୍ଡଟା ତ ଶୁଣିଛ, ଏସିଡିଟି, ଶୁଣିଛ ନା ନାଇଁ? ଅମ୍ଳଜନିତ ସମସ୍ୟା। କୌଣସି ଜିନିଷ କେହି ଜଣେ ମାତ୍ରାଧିକ ଖାଇଦେଲେ, ହେଇ ୱାର୍ଡଟା ଟିକେ ଭୁଲ ଦେଇଛି, ମାତ୍ରାଧିକ ଖାଇଦେଲେ କେବଳ ଏସିଡ ହୁଏନି, ଅନ୍ୟ ରିଜିନ ବି ଅଛି, ହେଲା। ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଖାଇବ, ତାଠୁ କମ ଖାଇଲେ ବି ଏସିଡ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଅଧିକ ଖାଇଲେ ବି ଏସିଡ ହବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ। ତେଣୁ ମାତ୍ରାଧିକ କାରକ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଏତେ ନାହିଁ। ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ବଡି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ରିଆକ୍ସନ ଚାଲିଥାଏ। ବଡି ଭିତରେ ଯୋଉ ଏସିଡ ଆଉ ବେସ୍ ର ବାଲାନ୍ସ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେ ବାଲାନ୍ସ ରେ ଯଦି କିଛି ଗଡବଡି ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଏସିଡିଟି ନାମକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବଡି ଭିତରେ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବୁଝିପାରୁନ? ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ଉପଚାର କଣ, କେତେଟା ଅପସନ ଦେଇଛି। ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଖାଇବା, ନା ଭିନେଗାର ଖାଇବା, ନା ସୋଡା ଦ୍ରବଣ ଖାଇବା, କଣ ଖାଇବା? ଆମେ ଯାଇକି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଟିକେ ପିଉଛେ, ନାଇଁ କି ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କି ଜଲଜିରା ଫଲଜିରା ପାଣି ପିଉଛେ, ନାଇଁ ଚା ବି ହଉ, ଲେମ୍ବୁ ରସ ପ୍ରାୟ ମନା କରନ୍ତି, ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ହାୟର କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ମଜା କଥା ବୋଲୁ ତମ ଜିନିଷ କହୁଛି, ହାୟର କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଢିବ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କମନ ଆୟନ ଇଫେକ୍ଟ। ହେଲା, କମନ ଆୟନ ଇଫେକ୍ଟ କଣ?
गोटे तो ओडिया रे तो रूढ़ी शुणी थिबो कंटा को कंटा रे काढियो बुझी परत नै गोटे कंटा को माने गोटे शत्रु द्वारा ही मारा जाय परियो सेही भलिया कांसेप्ट अछि बॉडी रे हमर एटा सब कोन होछि विभिन्न रिएक्शन होछि रिएक्शन ना बैलेंस इम्बैलेंस जोगु माने मीडियम टा हमर अधिक एसिडिक हेछि बुझियो नै आमे जदि अधिक आहुरी एसिड टिके खाइदवा अधिक एसिड खाय माने डायरेक्ट एसिड पी दवा कि से कथा कहूनी मु बा पानी लेंबू रस कथा कहूची लेंबू रस यदि खाइबा हमर केमिस्ट्री कहूची जे जदि गोटे रिएक्शन आम जानी दीटा पार्श्व अच्छी गोटे बाम पार्श्व गोटे दक्षिण पार्श्व माने एपट रहा रिएक्टांट उत्पाद एपट रहा प्रोडक्ट जदि आम गोटे रिएक्शन किसी मिसेले जदि रिएक्टेंट मिसई पारिबा प्रोडक्ट मिसेबा ताले रिएक्शन टा तार ऑपोजिट शिफ्ट करियो रिएक्शन टा कोन करियो तार ऑपोजिट को शिफ्ट करियो माने एटी बुझा चेष्टा करो हमर एटी अधिक एसिड तयारी होउची रिएक्शन रे हम बॉडी भीतर अधिक एसिड तयारी होउची हम समस्या अछि जदि हम सेठी लेंबू रस पीबा हला जदि हम लेंबू रस पीबा ताले निहाती भाबरे हमर जो पीएच टा को हम रिएक्शन टा ऑपोजिटली शिफ्ट करियो माने एमिति बॉडी देखैबो काम जेमति कि कम एसिड तयारी हो बुझि परत नै ताले यार यूज रे हम लेंबू रस पीएटा रे मध्य गोटे उपचार बा मेडिसिन हे पारे किंतु केही हमको सेटा उपदेश दियंतनी कारण समस्त सब जिंस जान न त एटा हमें नॉर्मली कोन को एंटासिड बोली तार हम घर समस्त एंटासिड अछि जो डाइजेन डाइवोल टैबलेट धर जब के लिक्विड फॉर्म न लिक्विड अधिक इफेक्टिव मनता लिक्विड फॉर्म टा अधिक इफेक्टिव नॉर्मल टैबलेट अपेक्षा केनो हम एंटासिड खाइ दउचे हम सेटा टेम्पररी कि समय भलो लागु छै बुझि परत बुझि पाउ जा भी हो ये तो बहुत जिंस ता भीतर अछि एते जिंस कम जिगा दरकार नै एठी ओटे देइछि जिंस को जे एमाने अम्ल क्षार परस्पर को कोन प्रशमन करନ୍ତି न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नै कि अम्ल कहा क्षारकर प्रभाव को प्रशमन करे आ क्षार अम्लर प्रभाव को प्रशमन करे जो लवण कथा हम पढने कि अम्ल क्षार त पडले लवण टा काई से जोडिछि ए सब आछि कोडरो ए प्रशमित रिएक्शन बा प्रशमन रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कोन ना जेते बेले गोटे एसिड गोटे का सहित मिसिबो बेस बा क्षार सहित मिसिबो कोन तयारी हो लवण इंग्लिश होछि कोन सॉल्ट आ वाटर तयारी हो मन रखता ए रिएक्शन टा को जाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बा प्रशमन रिएक्शन क्लियर प्रोसेस टा होछि कोन जेते बेले हमर एसिड सहित गोटे बेस मिसिला सेतरे हमर कोन तयारी हला सॉल्ट प्लस वाटर तयारी हो याकू को जाय प्रशमन माने ये परस्पर कोन कले नॉलिफाई करिया पर त न्यूट्रलाइज कले हला त न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट कोन हला सॉल्ट हला आ गोटे कोन हला वाटर हला क्लियर जानि पारलो जीवा हम नेक्स्ट देखिबा एटी देखिबा प्रॉपर्टी देछि केतरा तारा देखो एक ए इंपोर्टेंट है हम पेज रे 18 नंबर ऑप्शन बही खोली के बसो सीटी सब जिंस अछि हला कि देखो एटी कोन देछि अम्लर प्रॉपर्टी होछि कोन ना अम्ल हम कोन लागे खट्टा लागे ए नील लिटमस कोन कर दे लाल कर दिए से परि क्षार खारिया लागे ए लाल लिटमस को नील करे ताले लिटमस कोन ओडे इंडिकेटर सूचक इंडिकेटर एटा प्राकृतिक गयर काम होछि कोन प्राकृतिक नेचुरल एक्सट्रैक्ट बुझि पाछ ना हम आर्टिफिशियल मध्ये अछि देखिबा हळदी मध्ये गोटे से प्रकार सूचक गोटे एग्जांपल देछि गोटे धळा रंगर हळदिया तरकारी लागि दाग तरकारी रंगडा सुकेला पर हळदी आइ जाय ना सेतरे साबुन फेण मिसिले साबुन टा कोन गोटे क्षार साबुन टा कोन सोडियम पोटेशियम सॉल्ट रो तयारी ओटा से क्षार ओडा लागि तारे से रंग तार चेंज आइ जाय लोहिता बादामी रंग होई जाय पुनी पानी रे धोई गेले पुनी ता रंग आसे से अलग कथा ताले ये मध्ये हळदी मध्ये गोटे टाइप रो इंडिकेटर हला ताले आउ केतरा तम जदि मन प्रश्न उठ सर आपण जदि कथा कहले इटा प्राकृतिक सूचक नेचुरल इंडिकेटर से आर्टिफिशियल बा सिंथेटिक इंडिकेटर किछि अछि कि अछि कोडा ओडा होछि मिथाइल ऑरेंज आ होछि फेनोल्फथालीन एटा मन रखता वाटडा मिथाइल ऑरेंज एटा फेनोल्फथालीन तो सर इंडिकेटर कोन इंडिकेटर होछि जे इंडिकेट करियो तम गाड़ी रे अगर स्पीडोमीटर लागि स्पीडोमीटर भी गोटे जिंस इंडिकेट करछि कोन इंडिकेट करछि स्पीड इंडिकेट करछि सेतर हमें सचेतन हो जाउचे बा कॉन्शियस हो जाउचे कि गाड़ीटा केते लिमिट रे हम कंट्रोल रे रहबो बा केते स्पीड रे हम चलाइबो पड़ुछि नै कि तनो से बुलिया गोटे विभिन्न केमिकल रिएक्शन इंडिकेटर प्रेजेंस टा हमको सूचय दबो इंडिकेट कर दबो रिएक्शन रे पीएच रे कोन चेंज गडुछि पीएच पड़िले 7 रे फुटका कमिले एटा एसिडिक हे जो 7 रे अधिक हेले बेसिक हे जो तो एसिड बेस रो जो चेंज टा बा पीएच रे चेंज ले माने मीडियम रो बेसिसिटी के एसिडिक बा एसिडिक नेचर बा बेसिक नेचर चेंज होछि ना सेटा की सूचयबो इंडिकेटर सूचयबो केतबळे रंग द्वारा सूचयबो जोटा कि कलर इंडिकेटर कहा छै आ केतबळे बासना द्वारा किसी बासना बा गंध आनी कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोली कहा छै देछि विशेष कर तुम देखियो पछ देछि हला
তাহলে এই ভিতরে আমি দুইটা পড়লে ওটা হচ্ছে ন্যাচুরাল ইন্ডিকেটর যেটা কি লিটমাস পড়লে ওটা হলদি মধ্যে বুঝেলা আর ওটা হচ্ছে সিনথেটিক ইন্ডিকেটর যেটা আর্টিফিশিয়াল ইন্ডিকেটর বলি কହୁଛେ সেটা হচ্ছে কি মিথাইল অরেঞ্জ আর ওটা হচ্ছে কি ফেনोल्फथालीन क्लियर জানি পড়লা नेक्स्ट ଯିବା ଆଉ কোন ଦେଇଛି नेक्स्ट पेज रे ହେଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଠି এই লিটমাস को কাହିଁକି ନ୍ୟାଚୁରାଲ जो इंडिकेटर को आज ଏଠି ଦେଇଛି नॉर्मल लिटमस ର କଲର ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନୀଳ ହଳି ହେଲା ନୀଳ ଲୋହିତ ଯୋଉଟା को पर्पल कलर ବୋଲି ଯୋଉଟା କହୁଛ ଡାଏ ବା ରଞ୍ଜକ ଯୋଉଟା କହୁଛ थालोफाइटा शैवाल लाइकेन नु बाहर थालोफाइटा को जानछु तो यार बॉडी होची थैलस स्ट्रक्चर डिफरेंट थैलस स्ट्रक्चर थैलस कोन एते मु डिटेल पे आवश्यक न तथापि तुम पढिथिबो तले नवम श्रेणी तुम पिला क्लासिफिकेशन बा श्रेणी विभाग प्राणी रो मानकर श्रेणी विभाग पढितला उद्भिद मानकर श्रेणी विभाग पढितला सेतरे ब्रायोफाइटा टेरोफाइटा एडा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म एडा सब बनदला कि तो सेमान के अंडर थालोफाइटा अछि एटा थैलस स्ट्रक्चर जोगु ताका ना हेछि थालोफाइटा एते बुझिया दरकार नै एग्जांपल होची कि लाइकेन रो एटा तयारी छै लाइकेन को बॉडी हला तले ये कोन तले हम जानिले ये होची गोटे रंग जनित सूचक माने जदी पीएच चेंज होची ये निज रंग रे परिवर्तन हटियो तले रंग तले कोन रंग देखो तले ताको मूल रु काई कहला नील लोहित बोली जदी रंग रे परिवर्तन होची तले निर्दिष्ट रंग नाही एसिड रे अलग रंग बेसिक अलग तले ई रंगटा का आते बेले तले न्यूट्रल थाए अर्थात बुझिया चेष्टा करो जते बेले लिटमस द्रवण जो द्रवणटा में से पूरा अम्लीय है नथिबो कि खाइय नथिबो माने पीएच होची केते 7 या रंग कोन थाए नील लोहित ए पर्पल कलर टा एटा केते बेले न्यूट्रल स्टेज हला किंतु आ एटा तळडा कि दरकार ना आवश्यक नै किंतु जते बेले हमर कोन जाय पा मीडियम चेंज हुई बेसिक मीडियम हो कि एसिडिक मीडियम हो से समय का रंग रंगटे परिवर्तन क्लियर जानिला तो एमान को हम कोन कहूचे ना अम्ल आ क्षार इंडिकेटर बोली कहते सूचक बोली कहते केवल सूचक बोली मते कह जाय परिबो अम्ल क्षार मन क्लियर जानि पालो ये थला तमरो फर्स्ट पेज रो कथा एबे हम टिके जिबा सेकंड पेज को इंपोर्टेंट पेज को हला सेकंड पेज को आगत हम जाउची जोटा इंडिकेटर को तुम संगे संगे कहली से कथा हम ध्यान दोची तापर अला कथा देखिबा देखो एठी एठी आगटे तळको देखिबा एठी हला एठी जो दीटा अलग अलग इंडिकेटर जोटा कहले एटा पढिजे तो तले एटा सब लिटमस हो हला ये लिटमस हो ला लिटमस हो नीला लिटमस हो एटा दरकार नै पछे देखिबा हला फेनोल्फथालीन हो मिथाइल ऑरेंज हो एटा सब होची कोन ए जो लाल लिटमस नीला लिटमस होची कोन कहला जो लिटमस ता जो लोहित रंग पर्पल कलर थिला कि तार विभिन्न द्रवण रंग गोटे लाल हो कि नीला हो गोटे एसिडिक मीडियम ता रंग माने अम्ल थिला बेले आ गोटे होची बेसिक मीडियम ता रंग आउ जेटा सब द्रवणडा रहला फेनोल्फथालीन मिथाइल ऑरेंज जेटा होची सिंथेटिक बा आर्टिफिशियल इंडिकेटर माने तयारी करा जे केमिकल मिसे बुझियाला तो जानियाला नेक्स्ट हम जीबा ऊपर कोन देछि देखा से 19 नंबर एटा इंपोर्टेंट देछि एटा हला एटी टी देखिया स्टडी करिया तापर हम जीबा देखो ये ताले ये जो सूचक हम वर्तमान जाय पढ़ले से हळदी हो से लिटमस हो कि फेनोल्फथालीन हो कि मिथाइल ऑरेंज हो एमाने कोन करती निजर वर्ण परिवर्तन द्वारा हमको सूचय दियंती जे द्रवणटा अम्लीय ना क्षारीय ताले एमाने होजनी कलर इंडिकेटर कना कलर जनित एमाने कथा हला आउ केजरा पदार्थ अछनी जे माने निजर अम्लीय क्षारक माध्यम रे गंध परिवर्तन द्वारा जानती माने घ्राण सूचक माने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोली कहै छै बुझि परछ एग्जांपल देछि केतरा तळे एटा विशेष वर्णना दरकार नै खाली ती मन को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर मध्ये अछंती कलर इंडिकेटर मध्ये अछंती कलर इंडिकेटर जे रंग परिवर्तन करिवे लिटमस हो आ से फेनोल्फथालीन हो से मिथाइल ऑरेंज हो हला से नेचुरल हे पर आर्टिफिशियल बा सिंथेटिक मध्ये हे पर कि एपड जोटा देला हमर कोडा देछि हमर केतरा गंध जनित जो ऑल्फैक्टरी वाला देछि से गंध रे किछि परिवर्तन आनी हला बुझियो ना गंध रा परिवर्तन हो नेक्स्ट सिबा केतरा इंपोर्टेंट इंस स्टडी करिवा देखो कोन देछि एपड़ साइड कस एठी कस इंपोर्टेंट ए एसिड ओडा टी भलो कि बापा देखो एसिड बेस केतरा देछि याको स्टडी करियो देछि या नाडा मन को जतक ना केमिकल मन रखया को पड़ियो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बा हाइड्रोजन क्लोराइड फार्मूला होची HCl
सांगे सांगे लिखिया दरकार भांगिले कौन हबो H प्लस Cl माइनस कहिथि योज्यता 1 1 सल्ला नेक्स्ट आसीबो सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन सल्फेट जोटा को तुम कहउछ एटा एसिड ये भांगिले कौन दबो 2H प्लस SO4 2 माइनस H प्लस दबो H रो योज्यता होची 1 आ एटा होची कोन सल्फेट आयन दबो SO4 2 माइनस योज्यता होची -2 नेक्स्ट आसीला नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड ये भांगिले कौन दबो H प्लस NO3 माइनस नेक्स्ट आसीला एसिटिक एसिड हला एसिटिक एसिड कौन दबो CH3COO माइनस प्लस H प्लस हला बुझी परत राई लड़ा H प्लस टा आगे रखा जाए एटा कि एसिड ओडा COH ओडा ग्रुप तर RCOH बेले हम पिला दिन पड़ी पड़ी आस्ते तो एटा लास्ट रो खाउची हो ये दबो भी से H प्लस CH3CO माइनस या ना होची एसिटेट आयन CH3CO माइनस एसिटेट आयन सेमती सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दबो Na प्लस OH माइनस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटा सब बेस होड़ा Ca प्लस एटा मन इंपोर्टेंट Ca2 प्लस प्लस 2 OH माइनस एटी कैल्शियम रो जोजिता होची 2 OH रो जोजिता होची 1 तम दीटा ला नेक्स्ट आसीला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH ये भांगिले दबो K प्लस OH माइनस नेक्स्ट आसीला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 ये भांगिले दबो Mg2 प्लस प्लस 2 OH माइनस इन मैग्नीशियम जो जोजिता 2 OH रहती की नेक्स्ट आसीला अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम एटे दबो अमोनियम NH4 प्लस OH माइनस NH4 प्लस अमोनियम आयन हला नावडा सब मन अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऊपरटा बेस देछि तोरा सब एसिड दिछि HCl एसिड H2SO4 एसिड HNO3 एसिड C3COH एसिड तोरा बेस NaOH COH OH2 KOH MgOH2 NH4OH एटा सब बेस बुझला की क्लियर एति थिला हम दीटा पढिले चला 18 19 बेस्ट देखिबा खाली चला